an incident that has sent shockwaves across the country. Former Maharashtra minister and NCP leader Baba Siddiqui was shot dead allegedly by 3 men in Mumbai's Bandra area on the 12th of October. The Mumbai police have arrested a 28-year-old man from Pune who, along with his brother, enlisted 2 of the 3 alleged shooters. Police called the man Praveen Lonkar a co-conspirator and said they are on the lookout for his brother Shubham Lonkar. Now viewers, this is the 3rd arrest in the case. A social media post allegedly made by Shubhu Lonkar, a suspected member of the Bishnoi gang, surfaced online claiming responsibility for Siddiqui's murder. The post also issued a warning stating that anyone who supports actor Salman Khan will be targeted next. The police apprehended 2 shooters at the scene, identified as Gurmail Singh and Dharam Raj. Both suspects were presented in court, where Gurmail was remanded to police custody until the 21st of October. The court also ordered an ossification test for Dharam Raj to verify his age. The test confirmed that Dharam Raj is not a minor, as his lawyer had claimed. Consequently, he has also been placed in police custody until the 21st of October. Mumbai police have launched an investigation into the murder and are looking at multiple angles and motives behind the crime. Now, the probe is underway to find motives including a possible contract killing, business rivalry, threat over slum rehabilitation project. Additionally, the police is also probing the Lawrence Bishnoi Salman Khan link in the case. In a Facebook post, Shubham Lonkar, a member of the Lawrence Bishnoi gang, claimed responsibility for Siddiqui's murder. The gang member also issued a warning to anyone assisting actor Salman Khan. Siddiqui's close association with Salman Khan may have led to the hiring of contract killers to eliminate him. Siddiqui, being a prominent figure in Mumbai's socio-culture scene, may have had rivalries, so political or business disputes could also be contributing factors. The final rites of Nationalist Congress Party leader and 3-time MLA Baba Siddiqui were performed with full state honours on Sunday night. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde ordered for state honours, as Siddiqui had served as a minister in the Maharashtra cabinet from 2004 to 2008. Let's go across to my colleague Rajiv, who joins us over the phone line on more on this. Rajiv, ये एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था जो कल सामने आया। हमने देखा कि कैसे बाबा सिद्दीकी को सरेआम बांद्रा जैसी जगह पे गोली मार दी गई। आप हमें ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन कहां पे रीच हो गई है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया, पॉसिबल थियरीज के बारे में बताइए हमें। देखिए, पुणे से जो प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी अभी तक जो कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें सबसे मुख्य कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि प्रवीण लोनकर जो है वो सगा भाई है शुभम लोनकर का। शुभम लोनकर जो द्वारा ये हत्या कराई गई, इसकी फेसबुक की उसने जिम्मेदारी ली थी और शुभम लोनकर के जो तार हैं वो बिश्नोई गैंग से जुड़ते रहे हैं। हमेशा उसमें उसका लिंक सामने आया है। पूर्व में भी वो अकोला पुलिस द्वारा हथियार के साथ में इलीगल वेपन सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो एक चीज तो क्लियर है कि शुभम लोनकर प्रवीण लोनकर का भाई है। प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर ने ही शिव कुमार और धर्मराज कश्यप को इस पूरे मामले में जो है हैंडल कर रहा था। खुद पुलिस ने भी जो जानकारी ऑफिशियली दी है उसमें उन्होंने कहा कि धर्मराज और शिव कुमार जो फरार आरोपी है, इन दोनों को नरेट करने वाला, इन दोनों को हैंडल करने वाले जो मास्टरमाइंड है वो शुभम और प्रवीण लोनकर हैं, जो कि इस पूरी गुत्थी के पीछे कहीं ना कहीं शामिल है। मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर पुलिस शुभम लोनकर को देख रही है। अब एक चीज साफ है कि आने वाले समय में अगर शुभम लोनकर की गिरफ्तारी होती है तो ये मामला आगे जाकर क्लियर हो जाएगा कि शुभम लोनकर को का ऑपरेटर कौन था। शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर को ने धर्मराज और शिव कुमार को डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन शुभम को कौन डायरेक्शन दे रहा था? क्या वो बिश्नोई गैंग से
सीधे तौर पर मैसेज आया था या फिर कोई और इसमें इन्वॉल्व है, इस पर से पर्दा हट सकता है। तो ये प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी बेहद अहम है, जो कि शुभम लोनकर का भाई है। प्रवीण लोनकर से पूछताछ होगी तो शुभम लोनकर को से जुड़े चीजें में निकलकर सामने आएगी। दूसरी बड़ी बात है कि धनराज कश्यप ने खुद को नाबालिग के तौर पर कोर्ट में कल दावा किया था, लेकिन क्लासिफिकेशन टेस्ट में वो ये बात साबित हो गई कि वो नाबालिग नहीं है, बालिग है। अब उसके साथ में वयस्क के तहत जो भी कोर्ट की नियमावली होती है उसके तहत उसे ट्रीट किया जाएगा, उससे पुलिस पूछताछ करेगी। आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से लगातार हम बता रहे थे कि इस शूटआउट के पीछे कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी खुल रही है, क्योंकि शुभम जो है बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है। प्रवीण लोनकर शुभम का भाई है और यही दोनों ऑपरेट कर रहे थे शिव कुमार को और धनराज को। आप हमें एक चीज ये भी बताइए कि बाबा सिद्दीकी ने पहले भी बोला था कि उन्हें जो है काफी तरीके के थ्रेट्स आ रहे हैं, थ्रेट्स वो रिसीव कर रहे हैं, ओविंग टू विच उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। उसके बावजूद हम यहाँ पे बाबा सिद्दीकी की बात करें, किसी एक आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। काफी हाई प्रोफाइल लीडर ले चुके हैं, बॉलीवुड के भी काफी संबंध है उनके, काफी सारे जो एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ क्लोज इनफैक्ट रिलेशनशिप्स वी कैन कॉल इट। बट यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ऐसा एक बड़ा हादसा बांद्रा जैसी जगह पे बाबा सिद्दीकी जैसे इंसान के साथ हो रहा है, तो कॉमन मैन कितना ही सेफ है? देखिए, चूंकि मुंबई में बांद्रा एक बड़ा हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है, लेकिन जहां पर ये शूट आउट हुआ है वो पूरी तरह से लगभग 4 से 5 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में पूरी तरह से स्लम एरिया है जहां पर ये शूट आउट हुआ है। और मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटी हुई एक सड़क है और वहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। एक चीज, दूसरी चीज, बाबा सिद्दीकी को जो थ्रेट की बात लगातार चाहे अदर मीडिया हाउसेस या न्यूज प्रोवाइडर ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी थी कि बाबा सिद्दीकी को जो कथित तौर पर थ्रेट की बात कही जा रही है उसकी लिखित तौर पर कभी कोई शिकायत मुंबई पुलिस को नहीं दी गई थी बाबा सिद्दीकी या सिद्दीकी परिवार की तरफ से। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ इनपुट थे कि बाबा सिद्दीकी को थ्रेट हो सकता है, इसलिए मुंबई पुलिस ने स्वतः नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी दी थी। क्योंकि हमेशा बाबा सिद्दीकी के साथ में एक कांस्टेबल विथ वेपन जो है हमेशा रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 3 पुलिस कर्मचारी बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कल जब कोर्ट में पेश किया गया आरोपियों को, उसके बाद जो रिमांड कॉपी सामने आई उसमें एक बात ये भी सामने आई है कि घटना के समय महज 2 पुलिस कर्मचारी बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात थे। पुलिस ने उन्हें 3 पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा दी थी। घटना के समय 2 लोग तैनात थे और लोग वाई कैटेगरी की सुरक्षा की बात कह रहे थे। मिनिस्टर तक ने महाराष्ट्र की इस तरह के दावे किए, लेकिन देर शाम मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी, सिर्फ नॉन कैटेगराइज सुरक्षा थी। 3 पुलिस कर्मचारी बाबा सिद्दीकी के साथ में दिए जाने का आदेश था, लेकिन घटना के समय सिर्फ 2 ही पुलिस कर्मचारी थे। लेकिन एक बात सच जरूर है कि इतने हाई प्रोफाइल लीडर को जिसके संबंध बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी रहे हों, साथ साथ में उद्योग जगत में भी रहे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का रियल एस्टेट से लेकर होटल कारोबार तक एक बड़ा व्यापार भी है। ऐसे शख्स को अगर दिन दहाड़े कोई सड़क पर निशाना बनाता है तो सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। विल कीप कमिंग बैक टू यू। नाउ फॉर दोज हु हैव जस्ट जॉइंड अस, दिस इज इन फैक्ट an incident that has sent shockwaves not only in Maharashtra but across the country. We're talking about a very high profile killing here, viewers. Former Maharashtra minister and NCP leader Baba Siddiki was shot dead allegedly by 3 men in Mumbai's Bandra area on the 12th of October. The Mumbai police have arrested a 28-year-old man from Pune who, along with his brother, enlisted 2 of the 3 alleged shooters. The police called the man Praveen Lonkar a co-conspirator and said that they are on the lookout for his brother Shubham Lonkar. A towering figure in Maharashtra politics, NCP leader Baba Siddiki has been shot in a brutal attack near Bandra East.
The former Congress MLA, in fact, who recently joined the Ajit Pawar faction of the NCP, was gunned down just a short distance away from his son Zishan Siddiqui's office, raising questions that if his son Zishan was also the target of the assailants. 2 to 3 rounds were fired, leaving Baba Siddiqui critically injured. He was in fact shot in the chest. He was taken to the hospital where he succumbed to his injuries. Baba Siddiqui had in fact recently received threats and his security was beefed up in response.